तो मैं बता रहा था कि 1991 में जो प्रोविजन है विथ रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग इन द कैरेक्टर प्रोहिबिट्स द चेंजिंग इन द कैरेक्टर आफ्टर 1947, वो तो ओपन इंटरप्रिटेशन है उसका, तो ऐसा कुछ नहीं है प्रवेश। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग, मानसी। So understanding the value of investing, how it works and brings in profit. So value of investing हमारे लिए important इसलिए कि जो savings हैं, if they are channelized in the form of investment, so firstly जो cost of borrowing है for the companies that can get reduced. This is we can say one way of raising the debt in the market, which is considered to be more sustainable. Apart from this, individuals जो invest करेंगे, they'll also get an additional source of income through investing the returns that they can get. Plus अगर आप खाली savings रखते हो and inflation is increasing, so it results into reduction in your purchasing power because of increase in inflation. So that can also be tackled if you are into investing. And when we talk about the burden or the fiscal burden of providing the pensions, so if we, from the very beginning, if we are providing financial literacy and we are being aware about financial planning, so there also that fiscal burden on the government can be reduced in these ways. So these I would say is the value of investing. तो जब भी ओल्ड एज का प्रॉब्लम्स आते हैं कि कैसे उसको टैकल करें, कि उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है, तब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग बता सकते हैं कि जो पेंशन फंड है तो उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उनको रिटर्न अश्योर्ड रिटर्न मिलते रहे अगला 10-20 साल तक। ये ले लो मासी। Oh, so here we have the Indian National Congress passed a resolution of Purn Swaraj in 1929. Purn Swaraj means complete independence from the Britishers. So the questions is like there was the first achieved by the rival managers. So ये तो दूसरा उसके answers है ना? हम्म। I think these are not so important. ये कल ले लेंगे इसको, ऐसा नहीं। हाँ कल होगा। NIA raids 19 location। You can try to you can try to answer today, and then because every day they are going to give answers of the previous day, so that's how it happens. So you ओके can सर। always try to answer, and next day you can say yesterday we discussed that question. हाँ जी Today is सर। the answer. Okay, so So question one one is must try, Congress. because every day there are going to be answers of the previous day. हाँ जी sir. That's how it is. Okay, so the Congress demand for complete independence from its previous stance of dominant status for India was driven to an extent by the politics of this organization, which emerged from the meetings of the revolutionaries in Firozshah Kotla in Delhi during 1928, named the organization its previous avatar. So I think it can be HSRA. Oshik. फिरोज शाह कोतला में मीटिंग रेवोल्यूशनरीज का। HSRA हो सकता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। हाँ, अच्छा। पहले HRA था हिंदुस्तान, तो उस पर HSRA आया फिर। उसमें भगत सिंह हम्म। थे और सुखदेव हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए। उसके आगे Okay, question. सेकेंड। One of the key members responsible for the reorganization of the group, okay, was also a revolutionary who wrote the pamphlet "Why I Am an Atheist" and who historian K.N. Panikkar described as one of India's early Marxists. Name him. Why I Am an Atheist. So सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। एथिस्ट, एथिस्ट, व्हाई एम आई एन एथिस्ट? रेवोल्यूशनरी है वो। सुभाष चंद्र बोस रेवोल्यूशनरी नहीं। भगत सिंह हो सकते हैं। Revolutionary. बस। अरे कैसे कैसे दोबारा बोलिए। से रेवोल्यूशनरी डायरेक्टली बोल सकते सुभाष चंद्र बोस को कि वो, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? कि So वन ऑफ one द of the की key मेंबर्स members. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 में 1920 में HSR से।
तो रेवोल्यूशनरी तो नहीं हुआ ना हाँ वो तो HSR है, HSR है वो, फर्स्ट हाँ इज एच एस HSR आर है ना, हाँ हाँ एच एस हाँ आर जी सर। और उसका प्रीवियस प्रीवियस अवतार इज HRA। यस सर। तो और दूसरा है, दूसरा आंसर इज भगत सिंह। हाँ जी ठीक है, जी तीसरा सर। आंसर है आपका काकरोरी में जो काकोरी नहीं है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी तो है। काकोरी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी में जो है आपके अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और राम प्रसाद बिस्मिल जी होंगे। हाँ जी सर। ठीक है, और दूसरा ये है कि अनुशीलन समिति, ये कौन है बताइए, क्वेश्चन नंबर 4, हु विल आंसर? प्रवेश, बी क्विक। हेलो प्रवेश, अबे है कि नहीं है यहाँ? और कौन बोलेगा आंसर? तो मैं बोल देता हूँ, हाँ बोले। सेटिंग ऑफ से बरिंदर कुमार घोष होंगे अनुशीलनम समिति क्यों के। बरिंदर कुमार घोष होंगे? टर्न स्पिरिचुअलिस्ट बे, टर्न स्पिरिचुअलिस्ट अरविंदो घोष। हाँ उसके भाई। हम्म। yes। और लास्ट में बताइए, while the Well, December 1929 Declaration of Independence was officially pronounced this day by the INC President Jawaharlal Nehru. Name this day. Mansi, हाँ name this day. सर, नहीं पता था मेरे को। अरे कमाल कर रहे हो यार, औशिक, नेम दिस डे। पुण्य स्वराज थे सर, या फिर अबे नेम दिस डे, डे। ट्वेंटी आज सिक्स भी सेलिब्रेट करते हैं ट्वेंटी इसको। सिक्स जनवरी हाँ मतलब। हाँ, बिल्कुल, हो गया। सर लेकिन यहाँ पे तो लिखे ना रेजोल्यूशन पास इन दिसंबर 1929, तो इस डे को हम हाँ कैसे तो, कमेमोरेट करते हैं आज? अरे यार, वाइल while the resolution for Purna Swaraj was passed in December 1929, the Declaration of Independence was officially promulgated on this day by then INC President. Name this day. समझ आई बात? हाँ जी सर। ठीक है, वो दिन और 26। ये दिन अलग है ना। हम्म। ये बता दिव्या ये दो सारे ले लो क्वेश्चंस, और ऐसे पीछे के पेपर्स में भी जो क्वेश्चन है उनको भी उठाओ। Identify this person whose most popular quote is Swaraj my birthright and I shall have it. तो बाल गंगाधर हाँ बताओ तिलक। फिर, बाल गंगाधर तिलक जी। हाँ जी सर। चलिए, पीछे वाले भी ले लो, पीछे भी आए हैं ना, तो आते हैं तो सर। लेते हर साल हर बार लेते सर उसको। हर बार लेते हैं, तो आशिक जी सब हिस्ट्री और बाकी साइंस जैसे ज्योग्राफी जो भी ऐसा है उसको अलग करवा के कराइए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट डन। प्रवेश जी से कराइए हिस्ट्री वाले सारे, हिस्ट्री और पॉलिटी। ओके, कैन यू हियर मी? 1 सेकेंड। यस सर। ओके, गेट इट डन बाय प्रवेश, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, साइंस बाय मानसी। ओके सर। या, कीप ऑन मूविंग। NIA रेड्स 19 लोकेशन इन 4 स्टेट्स, अरेस्ट 8। तो NIA एक्ट 2008 यह आया था 26/11 के बाद। एंड मानसी इसके बारे में, GS3 सिक्योरिटी बताओ, इसका मैंडेटरी क्या है? 4 to 5 एरियाज है। NIA NIA was not after 26/11 मुंबई अटैक के बाद नहीं था, it was after the Blue Star Operation 1984 में। NSG था after 26/11, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मानसी, ओसी की सही बोल रहे हैं, NIA एक्ट 2008 का ही है। आप अच्छा तो ब्लू मैं ऑपोजिट ऑपरेशन बोल से रही बता रहे हो। हूँ। NSG was after the Operation Blue Star। NIA ओके एक्ट। सो यहाँ पे मॉड्यूल IS मॉड्यूल ISIS जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया हम बोलते हैं। सो सदर्न इंडिया में ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं कि ISIS मॉड्यूल रिक्रूटमेंट में थ्रू द सोशल मीडिया ऐसा किया जाता है, एंड NIA रेड्स हैव बीन कंडक्टेड। तो इसको बोला जा रहा है बलारी मॉड्यूल। तो NIA एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ऐसा पाया जाता है कि UAPA के अंदर में आप इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित कर सकते हो। इंटरनेशनल जुडिक्शन मिला NIA को। उसके बाद फिर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो कोई भी एजेंसी के साथ वर्ल्ड वाइड। पहले ऐसा नहीं था। अब और फिर दूसरा नया नया प्रोविज़न ऐड हुआ इसमें। फॉर एग्जाम्पल स्मगलिंग हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया इसको। और फिर न्यूक्लियर अगर थ्रेट होता है तो उसमें भी आप काम कर सकते हो, बायोलॉजिकल थ्रेट। तो इतने सारे
एरियाज में उनको दिया, और मैंडेटरी दिया है। कन्विक्शन रेट बहुत हाई है, 93% से ऊपर है, तो इसलिए एनआईए इम्पोर्टेंट है। तो ओशिक आप मुझे बताइए कि क्या ये एनआईए सिर्फ आर्म टेररिस्ट इन्हीं को डील करते हैं या फिर काउंटरफीट करेंसी के ऊपर भी कुछ है इनका लेना देना? हाँ, हो सकता है इनका लेना देना। ये हाँ तो ओवरऑल सब सब चीज़ में कर सकते हैं काम, अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड कि आपको नहीं करना है। जो भी हम्म, चीज़ आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड होगा सब में काम कर सकते हैं। ठीक। पीएमएलए, मानसी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट Prevention of 2002। Money Laundering Act is there. It directly deals with the money laundering, or we can say round tripping of money or counterfeit currency. So PMLA accused can be given copy of grounds of detention within 24 hours. So this has been made clear by the Supreme Court. So Article 22 of the Constitution is there, जो बात करता है preventive detention की बात करते हैं, and double jeopardy की भी बात करते हैं। Prevention और double jeopardy मतलब same crime के लिए आप दो बारी punishment नहीं दे सकते हो। So enforcement directorate, they need to furnish the person accused. So this is part of their fundamental right, हम बोल सकते हैं कि within 24 hours of detention आपको grounds of arrest की कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। और प्रवेश 20 और 22 के बीच में, तो शॉर्ट में आप बता दो डिफरेंसेस आर्टिकल 20 और 22 के बीच में, प्यूनिटिव और जो प्रिवेंटिव होता है। तो आर्टिकल 22 के अंदर दो तरीके का डिटेंशन की बात की गई है। एक होता है प्यूरिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूरिटिव यानी आपने कोई क्राइम किया है, उसके बाद आपको आपके ऊपर केस जो है रजिस्टर्ड हुआ है और आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आपको डाला जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है कि आप संदेह के बिना पे, मतलब आप शक के बिना पर एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी बुक कर सकता है और आपको नजरबंद कर सकता है, हिंदी में बोले तो। और प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर 24 आवर्स के अंदर द इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैव टू प्रोड्यूस यू बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसके बाद आपका डिसाइड होता है कि आपको बेल मिलेगी या आपको जेल में भेजा जाएगा। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर विद इन 1 मंथ एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस का पैनल बैठता है, वो डिसाइड करता है कि आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन कितने महीने के लिए और बढ़ाया जाएगा या फिर इसको घटाया जाएगा। आर्टिकल 20 जो है वो बेसिकली बात करता है तीन चीजों की: एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी और सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन। सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है आप अपनी ही गवाही खुद नहीं दे सकते, या आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि अपने केस में आप खुद गवाही दो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिस क्राइम के लिए आपको सजा दी जाएगी वो क्राइम वो होना चाहिए जो अभी लागू में है, और क्राइम के हिसाब से जितनी सजा प्रावधानों के अंदर सीआरपीसी सीपीसी के अंदर है उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकती। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो। और एक होता है नो डबल जियोपार्डी, यानी एक बार आपको अगर सजा मिल गई है तो आपको उसी चीज के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगी। तो दिस इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 20 एंड 22। और बस एक कि अभी पीएमएलए में ये अमेंडमेंट आया 2023 में, उससे कुछ प्रोविजन पता है? नया अमेंडमेंट जो आया है। पीएलए 2023 की आप बात कर रहे हैं? हाँ। नहीं, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ अंदर जो स्ट्रिंजेंट बनाया गया है, एक्विजिशन पता है, हाँ। और लेकिन लिक्विडेशन होता है उसके लिए थोड़े स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म लाए गए। एग्जैक्टली एक बार सर्च कर लेना, ठीक। मानसी। ओके। एएसआई फाइल रिपोर्ट ऑन द साइंटिफिक सर्वे। साइंटिफिक सर्वे क्यों ऐसा है? क्योंकि आप उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, राइट फ्रॉम द रॉक, उसमें एनालिसिस करने के लिए उनका कार्बन डेटिंग हो गया, कोई भी अगर ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका, तो साइंटिफिक सर्वे इसलिए बोलते हैं। स्कल्पचर्स हो गया, रेडियो एक्टिविटी, स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। तो तो मानसी आप मुझे एक चीज बताइए, पीएमएलए एक्ट जो है इसको कौन सी एजेंसी सुपरवाइज करती है या इन्वेस्टिगेशन करती है उसके अंदर? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। और एनफोर्समेंट डायरेक्टर एक और एक्ट को डील करती है, उसका नाम क्या है? फेमा एक्ट 2010 आई थिंक। 1999। वो बात करो फॉर एफसीआरए का बात कर रहे हो, तो इसमें वन वेब
स्पेस एक्स स्टारलिंक। तो वन वेब और स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। तो ये इट है लो अर्थ ऑर्बिटर प्रोजेक्ट, और ये स्पेस बेस्ड सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट पहुंचाता है। तो इसके पास अप्रोक्सीमेटली जो स्पेस एक्स के पास है वो 4 to 5 thousand से ज़्यादा एक तरह से सैटेलाइट है इन लो अर्थ ऑर्बिट। वैसे ही वन वेव का भी रहेगा। तो जो अभी टेलीकम्युनिकेशन बिल है, तो इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द स्पेस बेस्ड सैटेलाइट अपार्ट फ्रॉम 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम। और दूसरा उनका कैसे अलॉटमेंट होगा, बिडिंग प्रोसेस कैसे होगा, उसके बारे में बात किया जाएगा। और इंटरसेप्शन कैसे किया जाएगा विथ सर्वेलेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। वो टेलीग्राफ एक्ट 1885 के पहले में था, तो उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। न्यू टेलीकम्युनिकेशन बिल है जो 2023 में आने वाला है। तो औशिक, यहाँ पे हम वन वेब और स्टारलिंक की बात कर रहे थे, तो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन जियो स्टेशनरी एंड लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स? मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को हम लो अर्थ ऑर्बिट में पोजीशन नहीं कर सकते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है और स्टेशनरी होता है। जियो स्टेशन एक ही पोजीशन पर, कोई भी जगह हम्म। पर आपको स्टेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो स्पीड रहेगा वो सेम विद द रिस्पेक्ट टू द अर्थ रोटेशन, इसलिए स्टेशनरी है वो। और लो अर्थ ऑर्बिटल में सब सैटेलाइट रह सकते हैं, लेकिन वो मूव करते रहेंगे हमेशा। तो प्लेस इसलिए नहीं कर सकते, उनकी अगर प्लेस कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना विद रिस्पेक्ट टू So अदर what is सैटेलाइट। the height के atmospheric height when we talk about low Earth orbit? 600 के आसपास होगा, 600, 450 अप्रोक्सीमेटली। And geosynchronous satellites जो होते हैं, दे उनकी क्या हाइट जियो होती है? सिंक्रोनस मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो हर सुबह इंडिया के ऊपर से गुजरना चाहिए। तो वो हमेशा यूज होता है जब एक तरह से वॉच करते हैं। रीसैट सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस है, पोलर सिंक्रोनस है क्योंकि पोलर की तरफ से ऊपर नहीं से होता है, वर्टिकली होता है, घूमता है। एंड यहाँ तो पे क्या हाइट है? इसमें वही जियो सिंक्रोनस में भी अधिकतर सब वैसे ही रहेगा, 36,000 के आसपास। तो लो अर्थ ओके। ऑर्बिटल डिफरेंट होते हैं, ये ले लेंगे डिटेल में जब साइंस एंड टेक करेंगे। फॉरेन टूरिस्ट विजिट अप बट स्टिल बिलो प्री पैंडेमिक लेवल। और फॉरेन टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए ऐसे क्या स्कीम्स लिए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, प्रवेश? ई वीज़ा का एप्लीकेशन है, स्वदेश दर्शन है, जो भी। फिर प्रसाद स्कीम है। प्रसाद है कि इंडिया में जो भी पिलग्रिमेज साइट है, हिंदू का अपना, मुस्लिम्स का अपना, बुद्धिज्म का अपना, सबको जोड़ना है एक तरह से कि वहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करोगे। फिर ट्रेन्स, स्पेशल ट्रेन्स आप उसमें इम्प्लीमेंट करोगे। फिर उसका फिर लोकल जो डेवलपमेंट है उसको आप करोगे। तो प्रसाद स्कीम इस पे फोकस करता है, आइडेंटिफाइंग द पिलग्रिमेज साइट अक्रॉस द इंडिया टू प्रमोट द रिलीजियस टूरिज्म। ई वीज़ा कॉन्सेप्ट हो गया। तो अराइवल अप्रोक्सीमेटली 10.5 मिलियन टू 1 करोड़, दैट इज 10.9 मिलियन था। उस जो कोविड के समय में 2.7 हो चुका, लेकिन अभी तक 6.4 ही मिलियन है। वो 10.9 टच नहीं किया अभी तक में, देखा जाए तो। JN1 variant states Union Health Ministry have asked all the states to maintain a constant vigilance over the COVID-19 situation। और JN1 वेरिएंट है जो केरला में पाया गया है। तो इ- ये इट इज़ अ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस एंड इट कॉजेज अ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, सार्स को बोलते हैं। तो इसमें एक चीज़ बताओ कि इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती है और जो सर्ट इन जैसे हम डिजिटल के हिसाब से लेते हैं, तो इसमें ऐसा कोई सर्ट इन टाइप है इंडिया में फॉर द हेल्थ सेक्टर, मानसी? अभी तो आई कांट रिकॉल इट एग्जैक्टली औशिक।
अकॉर्डिंग टू मी NIV जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, वो थोड़ा सा उसके हिसाब से काम करते हैं, सर्टेन टाइप ही काम करते हैं कि वो आप कहीं पर भी कुछ भी होता है तो वो जाते हैं अपने डॉक्टर्स को भेजते हैं, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं, जांच करते हैं और फिर उसके हिसाब से रिकमेंड करते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम को, फिर इसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होता है बाकी सबका। And इम्पोर्टेंट। also there can be role of that highly institute for highly infectious diseases, if I'm putting it correctly, in Bhopal. It is also having a very major role. यस सर। NIV तो है ही, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी in molecular biology in Delhi, that is also there. So they यस सर। coordinate. यस So सर। you're right. Yeah. तो कैसे कोऑर्डिनेट होता है, तो इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल फॉर डिटेक्टिंग द अर्ली राइजिंग ट्रेंड ऑफ द केसेस, तो अलग से किया हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर एपिडेमियोलॉजिकल बिहेवियर गेट सेटल विद द इंडियन वेदर कंडीशन, तो वेदर कंडीशन अप्रोक्सीमेट उसी हिसाब से भी जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ डिस्पर्सल, पैटर्न ऑफ जो स्प्रेड होता है वायरस का, वो भी डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पर। तो वो, तो ये देख सकते हैं इसको। ये ले लो मानसी एक बार, डायरेक्ट टैक्स। So direct taxes will exceed 75% of the budget estimates. So net direct collections have been increasing. इसमें we can take the example of the income tax, the corporate tax, as an examples of direct taxes, and this is reflecting that the efficiency of tax collection is increasing. This can be also because of the increasing business activities. Also, it can be also because of the expansion in the tax base. So there can be three major reasons for this. And so we have the board of direct taxes, like we have it in case of the indirect taxes. तो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, तो ये दिखाता है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है और जो जॉब ग्रोथ है वो भी एक सस्टेन लेवल पे, तभी वो बढ़ सकता है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, क्योंकि Direct tax, this is also a good example when we talk about reduction in income inequality also, because direct taxes are progressive taxes. yes, दो होता है इसमें डायरेक्ट टैक्स के अंदर, पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स। तो पर्सनल Securities इनकम transaction tax भी है, STT जो कैपिटल मार्केट्स में लगता है, STT। टोटल कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स का 13,70,000 करोड़, इसमें से 7 लाख कॉर्पोरेट है, बाकी अप्रोक्सीमेटली 7 लाख, तो करीब करीब सेम ही है, पर्सनल इनकम टैक्स एंड ट्रांजेक्शन टैक्स। तो कोल माइनिंग में जो ऑक्शन होता है वो किस आधार पर होता है मानसी? कोल माइनिंग में ऑक्शन जो होता है, बिडिंग की जाती है। तो इसमें कुछ तो तो इसे कैप्टिव होता है, नॉन कैप्टिव होता है, और अभी क्या स्टेटस है इसका कोल माइनिंग ऑक्शन के हाँ, हिसाब से? बेसिस पे हम नहीं बोल सकते कि ऑक्शन होता है। ऑक्शन तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ऑफ बिडिंग द प्राइसेस, तो जिसका प्राइस कम होता है उसको एलोकेट किया जाता है। तो कैप्टिव माइनिंग इज की इंडस्ट्रीज के नियर बाय लोकेशन में वी हैव द कोल माइंस लोकेटेड, तो उसमें वी हैव अलाउड द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन ऑल्सो। So this is one we can say reformatory measure that have been undertaken recently. ओके। And coal mining के context में we also talk about Northeast India में, specifically in the Garo Khasi Jayante Hills, the rat hole mining is being banned, but still वो practice की जाती है। However, we saw कि सिल्कियारा tunnel में that was the methodology जो ultimately turned out to be successful in the end. तो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू कोल माइंस, तो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये We have मिनिस्ट्री Ministry ऑफ of Coal. तो रिगार्डिंग द ई बस, तो अभी देखा गया था कि जो लॉजिस्टिक इंडिया में पेनिट्रेशन है, इट इज़ अराउंड 8.1 8.2 to 9% के अराउंड। तो उसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए एक रोल रहेगा भारत माला, सागर माला से लेकर के बाकी सब। तो ई बस होना इम्पॉर्टेंट है, ई ट्रक होना इम्पॉर्टेंट है, और लॉन्ग टर्म में वी नीड अराउंड मोर देन 8 लाख
ऐसा एक बार आज से 2 हफ्ता पहले पढ़े थे डेटा विथ रिगार्डिंग टू ई ट्रक, तो ऐसे ई बस है। तो फेम 3 बात करते हैं। बोलो मानसी। आई वाज थिंकिंग एक डेडिकेटेड स्कीम भी इलेक्ट्रिक बसेस प्रोग्राम भी है नेशनल लेवल पे, लाइक वी टॉक मोर ऑफन अबाउट द फेम स्कीम। आगे बोल आगे। हाँ, यही मतलब कि फेम स्कीम डिफरेंट, हाँ, जो फेम 1 फेम 2 फेम 3 है। वी टॉक्ड अबाउट कि फेम 1 इज फॉर द प्राइवेट व्हीकल्स, फेम 2 इज फॉर द पब्लिक सेक्टर, द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एंड फेम 3 में वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द स्कीम्स एंड द सब्सिडीज ऑल्सो। सो आई थिंक ये मेजर डिफरेंस है फेम 3 में। औशिक आप बता सकते हैं, एक और आई थिंक इम्पोर्टेंट एरिया है चार्जिंग फैसिलिटीज और इलेक्ट्रिक। चार्जिंग। यस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ई बसेस इज देयर, बट दिल्ली में वी आर सीइंग कि मिडिल क्लास के ऊपर आप कैसे मिडिल क्लास को कैसे अट्रैक्ट करोगे टुवर्ड्स यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। सो वहाँ पे ई बसेस में फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, लाइक ऑफ वाईफाई एंड गुड क्वालिटी इंटीरियर। और जो बसेस है वो थोड़ा और यू कैन से मोर एक्सपेंसिव एंड और लग्जूरियस है। यस, तो इम्पोर्टेंट स्कीम है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी बस प्रोग्राम। इसमें कैसे बढ़ा सकते हैं डिमांड फॉर द ई बसेस, इसको देखा जाता है। दूसरा कि इम्पोर्टेंट एरियाज है कि क्राइसिल। क्राइसिल क्या बात करते हैं? इट इज़ अ रेटिंग एजेंसी, डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी। फॉर एग्जांपल फॉरेन में 3 है, स्टैंडर्ड एंड पुअर से लेकर के, और बाकी याद नहीं आ रहा मुझे, बता देना मानसी। तो इंडिया में क्राइसिल है, वो बताते हैं कि इंडिया में जो ई बस है, एस्टिमेट total cost of ownership for running e-bus, it is lower than the IC engine and CNG buses। उसका लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा है, ब्रेक इवन 6 to 7 years में हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म में हिसाब से देखा जाए तो ई बस विल बी अफोर्डेबल, विल बी मोर प्रेफरेबल बाय द ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज इन इंडिया। इसको बढ़ा सकते हैं, ये और ले एक लो। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स एक इम्पॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। देन वी हैव गोल्डमैन सैचेस और स्टैंडर्ड एंड पुअर, आपने बता दिया। So capital expenditure loans to the states yet to hit half of the financial 24's rupees 1.3 lakh crore target. So capital expenditure, we say ki when we compare the revenue expenditure and capital expenditure, so it is often said ki India may earlier it is more skewed towards revenue expenditure, which is not helpful in terms of creating growth, or it is not helpful in terms of creating sustainable asset creation. So इसलिए capital expenditure बोला जाता है कि we have to increase that, and that can be done. One way would be the rationalization of revenue expenditure. So यहाँ पे स्टेट्स को जो अमाउंट दिया जाता है एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन्स, सो वहाँ पे वी आर सीइंग कि ओनली we have not even hit or transferred even the 50% of the amount to the state. So ये regional growth को hamper करेगा, जो pattern है उसको hamper करेगा। Plus we have been seeing कि of late states जो GST compensation scheme के अंडर they have been demanding कि उनका जो time period है वो extend किया जाना चाहिए। Of late हमने ये भी देखा केरला like state ये बोल रहे कि सेंटर की जो पॉलिसी या जो डीले कर रहे हैं द फंड्स डेवोल्यूशन, उसकी वजह से स्टेट्स में फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकती है। So financial planning at the state level is also important, and states like Telangana now they are saying कि financial planning पे वो और ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, जनरेटिव एआई कैन ऐड 1.2 to 1.5 ट्रिलियन डॉलर टू जीडीपी बाय FY30। 10 साल के अंदर में, 7 साल के अंदर में इट कैन ऐड इतना मच। तो जनरेटिव एआई कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, प्रवेश? जेन एआई, तो इसको जेन एआई को चैट बॉट के हिसाब से बना सकते हैं, चैट जीपीटी हो गया। इमेज प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं। फिर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है उसमें भी यूज कर सकते हैं। कोई कोई आर्किटेक्चर होता है ना कि टूट जाता है, टेम्पल टूट जाता है, तो बाकी जो बचा है जहाँ पर पता लग नहीं सकता है कि वहाँ क्या होगा स्ट्रक्चर, उसको भी जनरेट कर सकते हैं जेन एआई के अंदर में। म्यूजिक बना सकते हो सब, तो फाइनेंशियल सर्विस, रिटेल, हेल्थ केयर, ग्रीवांसेस के हिसाब से, तो सब जगह यूज कर सकते हो। नया फील्ड ऑफ जॉब क्रिएट्स होगा इसमें। वही बात है कि एआई कैन क्रिएट मोर जॉब देन इट कैन पोटेंशियली एलिमिनेट्स।
इट विल वेरी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, तो रीस्केलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डिफरेंट सेक्टर्स को अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि कैसे उसका जो मेथड ऑफ यूज़ है वो स्कूल लेवल एजुकेशन में लाए, और फिर यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन में रीस्केलिंग हो, तभी जा करके जो शिफ्ट होगा विल बी लेस डिस्ट्रप्टिव, नहीं तो ज़्यादा डिस्ट्रप्ट होगा। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम लोग बात करते हैं, क्रेडिट कोर्स हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर एग्जांपल कोर्सेरा हो गया, वो कैन बी यूज्ड फॉर रीस्किलिंग प्रोजेक्ट। प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी, जो इंडिया में भी आए थे, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, ही हैव बीन री इलेक्टेड फॉर द 6 year term, 89.6% वोट। तो इजिप्ट से रिलेटेड, इंडिया और इजिप्ट के बीच में रिलेशनशिप, प्रवेश, 2 to 3 areas। मानसी, इंडिया इजिप्ट। इंडिया इजिप्ट, ओके, अगर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री से, सो वी हैव बीन सीइंग ट्रेड बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया। और लाइक करंटली मैं एग्जैक्टली नहीं अब उसको सेग्रीगेट करके बता सकती, तो यू कैन स्पीक ऑन दिस। इंडिया और इजिप्ट में देखा जाए तो पहली बात सुएज कैनाल से इशू हो गया। सुएज कैनाल के अकॉर्डिंगली कि इंडिया बात करता है उसके अराउंड, इंडिया एक हब बनाना चाहता है, फाइनेंशियल सर्विस हब, इजिप्ट के साइड पे, जहाँ पर अडानी का इन्वेस्टमेंट भी है, बाकी बिरला का भी इन्वेस्टमेंट है, कि कैसे सुएज कैनाल के अराउंड एक सिटी बनाया जाए, एक हब बनाया जाए, फाइनेंशियल सर्विस बनाया जाए। दूसरा जो इंडिया और इजिप्ट का बात होता है विद रिस्पेक्ट टू द टेररिज्म, कि क्लोज कोऑर्डिनेशन हो जाए। तीसरा कि इजिप्शियन के पास जो वेपन्स है, वो एयरक्राफ्ट है, वो इट इज़ वेस्टर्न प्रोक्योर्ड, और वो भी बात करते हैं फ्रांस से रिलेटेड, राफेल हो गए एक्सेट्रा। तो इंडिया बनाना चाहते हैं कि अपने अंदर में हब, ताकि रिफ्यूलिंग हो जाए, या वापस एक तरह से रेट्रोफिटिंग हो जाए एयरक्राफ्ट का। तो डिफेंस का हो गया। चौथा हो गया कि इजिप्ट ब्रिक्स का मेंबर बन गया, तो डी डॉलराइजेशन, ग्लोबल साउथ का बात करेंगे हमेशा। पांचवा होगा कि लोकल रीजन में जो पॉलिटिक्स है अरेबिक कंट्री के अंदर में, तो उसमें इंडिया इजिप्ट के थ्रू अपना सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट कर सकता है बिटवीन द अरब, टर्की और ईरान का जो बीच में नेक्सस रहता है, नेक्सस नहीं बोल सकते, लाइब्रेरी रहता है, तो उसमें इजिप्ट एज अ ऑल्टरनेटिव पावर वो इंडिया खड़ा कर सकता है, उसे बात कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एरिया हो गया। और जब and समय आता है। also for यस। making and also for making India's policy towards Africa. Egypt is a very यस। important element ये। यस। of it. यस। So और Northern Africa, and when we talk about the East, even Northern Africa and the Northwest and even Northeast Africa, going till the middle one, Egypt is the main, it is the main linchpin. India had always very friendly relations with the Egyptian government, and the president अभी जो है प्रेसिडेंशियल अरब स्प्रिंग यहीं से शुरू, आप कह सकते हैं यहीं से तो नहीं, टुनिशिया से शुरू ट्यूनिशिया, हुआ, हाँ सर, ट्यूनिशिया बट देन इट हैड अ वेरी या इंपॉर्टेंट इजिप्ट, रोल. हाँ। यस। And I expect that on such issues and topics, Pravesh must be brushing himself up and he must be speaking on the spot. And Ashi, also make sure that you ask Shivank to, summarize a couple of things. शिवांग सर आई थिंक नॉट प्रेजेंट सर। ठीक है, ओके सर। Must be, okay, he was there. Must be if he joins back. यस सर। No problem. एंड रिगार्डिंग लास्ट पॉइंट जो इजिप्ट के साथ है, कि इंडिया ऑलवेज सपोर्ट्स इजिप्ट विद रिस्पेक्ट टू द वीट, क्योंकि इजिप्ट अपना वीट ग्रो नहीं कर सकते कभी कभी। तो जो रशिया यूक्रेन वॉर वो हुआ था, तो देयर वाज अ वीट क्राइसिस इन इजिप्ट, तो इंडिया सपोर्टेड फॉर इम्पोर्ट ऑफ द वीट एट अच्छी अफोर्डेबल रेट। और इंडिया का जो रुपी है और इजिप्ट का अपना लोकल करेंसी है, इसमें एक तरह से ट्रेड हुआ था, तो इट लीड्स टू द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी। तो इसलिए इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है थ्रू द रुपी ये बढ़ेगा। रुपए, यूपीआई, इसके बारे में बात होता है। यूए तो ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है, तो इजिप्ट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस ऑल एरिया कवर्ड। कस्टमाइज mRNA,
इज द नेक्स्ट फ्रंटियर इन पर्सनल मेडिसिन। तो कैस जेवी का बात करते हैं। कैस जेवी कल ही डिस्कस किए थे कि इट इज़ रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ द सिकल सेल डिजीज, जो लेट एनीमिया। उसमें जो ब्लड सेल होता है वो सिकल टाइप बन जाता है, उसमें लो ऑक्सीजन कैरियर, लो होमोग्लोबिन, उससे ही हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो कैस जेवी एक CRISPR-9 का टेक्नोलॉजी है, कंपनी है। कैस जेवी एक वैक्सीन है, वैक्सीन नहीं बोले, ट्रीटमेंट है। वो क्रिस्पर जो CS9 इसको, टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है फॉर द जेनेटिक म्यूटेशन, और वापस से बॉडी में डाला जाता है फॉर द रिकवरी। तो अभी कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में वो कम हो सकता है। तो वैसे ही mRNA वैक्सीन भी है। तो mRNA वैक्सीन हो गया, जो टेक्नोलॉजी होता है RNA, तो वैसे वहाँ कैस में भी यूज होता है RNA DNA, वैसे ये भी RNA वैक्सीन हो गया। तो RNA का स्ट्रैंड यूज करते हैं, उसमें आप फिर एक अलग से ले सकते हो एडिनो वायरस, उसके अंदर में आप चेंज कर सकते हो, वापस से ब्लड के अंदर पंप कर सकते हो। तो वही एक तरह से DNA वैक्सीन हो गया और mRNA वैक्सीन हो गया। तो सम चेंजेस आर मेड इन दिस वन। mRNA तो मेक अ ग्रेट। डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन mRNA एंड DNA वैक्सीन्स? तो बेसिक mRNA डिफरेंस। वैक्सीन, mRNA First, वैक्सीन में, first understand what is the difference between mRNA and DNA. हाँ जी सर। RNA एक स्ट्रैंड हो गया, DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, RNA एक स्ट्रैंड हो गया पूरा का। तो उसमें चेंजेस करके आप करते हो, तो डायरेक्टली बाइंड कर जाता है RNA जो होता है बॉडी के अंदर में। तो फिर mRNA हो गया एक तरह से। और DNA हो गया कि आप उसमें चेंजेस करते हो DNA के अंदर में। तो आई थिंक, बताओ मानसिक। ठीक है, आरएनए का बॉडी में फंक्शन क्या होता है अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो? वो क्वालिटीज देता जैसे है। डीएनए प्रोटीन बनाता है, वैसे ही एमआरएनए भी उसी चीज में हेल्प करता है। मैसेंजर जैसे एमआरएनए, तो एम नहीं मैसेंजर, इट इज इनकोडेड विद मैसेज एंड इट इज टेकिंग अप द मैसेज। जब वो प्रोटीन जो सिंथेसिस करना है, या जो बॉडी का वो जो सिंथेसिस करना है, उसका जब रोल पूरा हो जाता है, तो उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ तो जी, ओके। डीएनए और आरएनए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वो राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डबल हेक्सिल, जैसा अभी औचिक ने बोला, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसका। अगर आप उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मनी प्लांट को जब हम चढ़ाते हैं ऐसे करके दोनों तरफ से, या जैसे बेड, जो हाँ जी गर्ल्स सर। बेड बनाती हैं, चोटी जिसको कहा जाता है, उसका है वो एलिमेंट। और उसका रोल है, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एमआरएनए कैसे प्रोटीन कोड करता है, तो अब ये पता लग गया साइंटिस्ट को, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत लिमिटेड है। एयूजी जैसे एडेनिन, यूएनिन और हाँ गुआनिन, जी। और सी से साइटोनाइन, थायमीन। इफ आई एम करेक्ट। थायमीन। हाँ, थाइमीन तो टी आएगा, वो तो डीएनए में आएगा ना। हाँ एटीजीसी जी सर। वो डीएनए में, एयूजीसी इज इन आरएन। सो देयर इज अ ओके सर। डिफरेंस, दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट। तो इसीलिए एमआरएनए ट्रीटमेंट जो है वो स्केलेबल हो सकता है, दैट्स व्हाट साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि पता है, अब आप लार्ज अमाउंट ऑफ एमआरएनए लैब में बना दोगे